Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Simple Machines. We have to do many works with our hands like pushing, pulling, lifting, turning, cutting, etc. We cannot always do every work with our hands only. For example, we cannot move or lift a very heavy stone with our hands. Then we use tools. Any tool or device that makes work simpler and easier is called a machine. In other words, a machine is a device by which much useful work can be done by applying less effort or force. So machines change the direction of force, others increase the speed of work. देखिए हम डेली अपनी लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम हैंड्स का यूज़ करते हैं, चाहे किसी चीज़ को पुश करना हो, पुल करना हो, लिफ्ट करना हो, टर्न करना हो, कट करना हो, बहुत सारा. लेकिन क्या हम सारा काम अपने हैंड से कर सकते हैं? नहीं. जैसे कि अगर किसी हैवी स्टोन को लिफ्ट करना है तो अपने हैंड से उसको मूव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए हम टूल का यूज़ करते हैं. तो कोई भी टूल या डिवाइस जो हमारे वर्क को ईजी करता है उसे हम कहते हैं मशीन. और दूसरे शब्दों में कहें तो मशीन आपका एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो यूजफुल वर्क है उसको किया जा सकता है बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट या फोर्स. तो कुछ मशीन्स तो क्या करती हैं, फोर्स ऑफ जो डायरेक्शन होता है फोर्स का उसको चेंज कर देती हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो स्पीड ऑफ वर्क को इंक्रीज कर देते हैं. Thus, a man puts less muscular effort in a machine and gets much work done. This is called mechanical advantage. Mechanical advantage is equals to work done upon effort applied. तो देखिए जब कोई मैन जो है वो लेस मास्कुलर इफेक्ट जो है उसको पुट करेगा मशीन में और उसको ज़्यादा वर्क डन मिलेगा, तो उसे कहा जाता है मैकेनिकल एडवांटेज. दिस इज द फॉर्मूला. Some machines in a factory can do the work of many people. The 6 kinds of basic machines are called simple machines. They are lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, wedge and screw. All the complex machines like bicycle, car, truck, floor mill and factory machines are made by these simple machines being used together. Out of 6 simple machines, wheel and axle and pulley are simple levers while wedge and screw are forms of inclined plane. तो देखिए 6 बेसिक मशीन्स हैं जिन्हें कहा जाता है सिंपल मशीन्स. तो ये आपकी देखिए ये सारी हैं 6. अब जितनी भी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं, चाहे हम बाइसिकल की बात करें, कार की, ट्रक की बात करें, तो उन सभी में इन मशीन्स का यूज़ किया जाता है साथ में. एंड आउट ऑफ 6 सिंपल मशीन्स अगर हम इनकी बात करें, व्हील एंड एक्सल एंड पुली आपके सिंपल लेवर्स हैं, जबकि वेज एंड स्क्रू आपके इंक्लाइंड प्लेन हैं. सो नंबर 1, लेवर. A lever is a rigid rod that can move around a fixed point on which it rests. तो ये आपका rigid rod होता है जो क्या करता है कि मूव कर सकता है एक फिक्स पॉइंट को जिस पे कि ये रेस्ट कर रहा है, राइट. When we open the lid of a tin with a spoon, we are using it as a lever. We rest the spoon on the tin, insert the handle under the lid and press on the other end. The point of rest or support is called fulcrum. The lid of the tin load and pressing force. अच्छा, जैसे हमें कई बार होता है ना कि किसी का टिन है उसका लिड खोलना है तो हम स्पून का यूज़ करते हैं, तो एज ए लेवर उसको यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं कि स्पून को टिन में उसको रेस्ट करते हैं, देन हैंडल को इंसर्ट किया जाता है अंडर द लिड, है ना. एंड देन दूसरा जो एंड होता है, जैसे आपने स्पून को आपने इंसर्ट किया एक जगह पे वो रेस्ट करेगा और दूसरे जो एंड है उसको हम प्रेस करेंगे. तो जो पॉइंट है रेस्ट या सपोर्ट का, यानी दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम, एंड जो लिड है टिन का वो आपका लोड है and pressing आपका force. Even the early men used a lever to close and open the entrance of his cave with a big stone. He rested a tree branch on a small stone, inserted one end under the big stone and pressed the other end. This type of rod is called crowbar nowadays. Levers are generally of 3 kinds based on the position of load, effort and fulcrum. In the first kind of lever, like a crowbar, a claw hammer and a pair of scissors, the load and effort are on either side of the fulcrum. अच्छा, जो अर्ली मैन थे ना वो भी यूज़ करते थे लेवर का, मतलब कि जो एंट्रेंस होती थी उनकी केव की उसको ओपन या क्लोज करने के लिए बड़ा सा वो पत्थर उसमें लगा देते थे. तो क्या करते थे, जैसे कि जो ट्री की ब्रांच है उसको स्मॉल स्टोन पे रखा, फिर एक एंड इंसर्ट किया उस बिग स्टोन के नीचे एंड दूसरे एंड को फिर प्रेस किया. तो इस तरह की जो रॉड होती है दैट इज़ कॉल्ड क्रोबार. आजकल हम इसे क्रोबार कहते हैं. तो लेवर्स आपके जनरली
3 काइंड्स के होते हैं, वो डिपेंड करता है लोड, एफर्ट या फल्क्रम की पोजीशन क्या है, राइट। अब जैसे कि जो फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर है, जैसे कि अगर हम इनकी बात करें तो जो लोड एंड एफर्ट होते हैं इधर साइड होते हैं फल्क्रम के, यानी कि आपका फल्क्रम होगा इस तरह से, यहाँ पे आपका होगा एफर्ट और लोड, या फिर लोड या एफर्ट इस तरह से आपके हो सकते हैं। In the second kind of lever, like a bottle opener, a wheelbarrow and a nutcracker, the load lies in between the fulcrum and effort. अब second kind of lever में क्या होता है कि आपका जो load होता है ना, वो fulcrum and effort के बीच में होता है, right? जैसे कि आपके ये second kind of lever हैं सारे। In the third kind of lever, like tweezers and human arm, effort lies in between the fulcrum and the load. अब third kind of lever में क्या होता है, जैसे कि आपके सारे third kind of lever हैं, इसमें आपका क्या होगा, एफर्ट लाइज बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, राइट। व्हील एंड एक्सल, wheel and axle in combination work as a simple machine. It is a special lever of the second order. The axle is also a wheel of a smaller diameter which is fixed tightly to a wheel of bigger diameter. The system is used in the windlass to lift water from the wells, employing less effort. In a windlass, if the diameter of the wheel is 4 times of the axle, we can get work done by using just 1/4 of the effort. For example, if the load is 12 kg, the effort will be equal to lifting 3 kg. देखिए, व्हील एंड एक्सल जब कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं एज अ सिंपल मशीन, ये स्पेशल लेवर होता है आपका सेकेंड ऑर्डर का। जो एक्सल है ये आपका ये व्हील है आपका स्मॉलर डायमीटर का, जो कि फिक्स्ड होता है टाइटली बिगर डायमीटर के व्हील से। तो ये जो सिस्टम है आपका विंडलेस में यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए वेल से, ओके। अच्छा देखिए, विंडलेस में क्या होता है कि डायमीटर जो है ना व्हील का, वो एक्सल से 4 टाइम्स होगा, यानी कि जो वर्क डन होगा वो जस्ट कितना होगा, जो एफर्ट है ना उसका 1/4 एफर्ट में आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका लोड है 12 kg, तो 12 kg का 1/4 क्या होता है, 3, यानी कि जो एफर्ट है वो इक्वल होगा लिफ्टिंग 3 kg, राइट। Wheel and axle of a bicycle, a pencil sharpener, a door knob and rolling shutter are other examples of wheel and axle machine. So ये आपके examples हैं, right? Gears. Two wheels engaged with each other are called gears. Gears change the direction of a motion or increase or decrease the speed. They are used in watches, vehicles, factory machines and instruments. देखिए, ये gears इस तरह से होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि आपका जो मोशन का डायरेक्शन है उसे चेंज करते हैं, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और ये बहुत सारी जगह पे यूज़ किए जाते हैं, लाइक आपकी वॉचेस में, व्हीकल्स में, फैक्ट्री मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स में। नेक्स्ट इज पुली। A single fixed pulley is a simple lever of first kind that helps to change the direction of a force. It is easy to pull downwards than upwards. The pulley is a grooved wheel over which a rope passes. The wheel is able to rotate about a fixed axle that acts as a fulcrum. The load is attached at one end, whereas effort is applied at the other end of the rope. Effort is applied equal to load. आपका जो सिंगल फिक्स पुली है ये एक सिंपल लेवर है आपका फर्स्ट काइंड का, जो कि फोर्स, जो डायरेक्शन होती है फोर्स को, उसको चेंज करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसको डाउनवर्ड पुल करना इजी होता है कंपैरेटिवली अपवर्ड पुल करना। तो जो पुली आपकी एक ग्रूव्ड व्हील होता है जिससे आपकी एक रोप पास होती है, ओके। तो जो व्हील होता है वो क्या होता है कि अपने वो रोटेट करता है अपने फिक्स्ड एक्सल में, जो कि फल्क्रम की तरह एक्ट करता है। फिर जो लोड है आपका अटैच होता है एक एंड में, जबकि जो एफर्ट है वो दूसरे एंड से आपका अप्लाई होता है, और जो एफर्ट होता है आपका वो इक्वल कितना होता है, लोड के। जैसे कि आपने देखा होगा वेल से जैसे पानी खींचते हैं तो उसमें पुली का यूज किया जाता है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन अ पुली एंड व्हील एंड एक्सल। अ पुली हैज मूविंग व्हील बट अ फिक्स्ड एक्सल. अ व्हील एंड एक्सल हैज मूविंग व्हील एंड अ मूविंग एक्सल. अच्छा, पुली में डिफरेंस क्या है और व्हील और एक्सल में डिफरेंस क्या है? पुली, व्हील एंड एक्सल के बीच का ये डिफरेंस है कि पुली में आपका मूविंग व्हील तो होता है बट फिक्स्ड एक्सल होता है, जबकि व्हील एंड एक्सल में मूविंग व्हील होता है, साथ ही साथ मूविंग एक्सल भी होता है. Movable pulley has a hook for the load. It requires half effort because the weight is supported by two stretches of the rope.
Pulleys are used in flagpoles, in wells, curtains, etc. अच्छा, जो मूवेबल पुली है ना, उसमें क्या होता है, आपका हुक होता है लोड के लिए. इसको में आपका हाफ एफर्ट लगता है क्योंकि जो वेट है दैट इज सपोर्टेड बाय 2 स्ट्रेचेस ऑफ द रोप. तो पुलीज आपकी यूज की जाती है फ्लैग पोस्ट में, आपकी वेल्स में, आपकी कर्टन्स में. इंक्लाइंड प्लेन. An inclined plane is a slope that is a flat surface with one end higher than the other. It is like a road up a hill. It is used to roll heavy drums up or down to pull heavy loads to great heights. On an inclined plane, the load is lifted by little. A small bit of work is done each time. For example, laborers use planks of wood for loading things in a truck. In some houses, a cemented slope is made on the front door for taking the motorcycle up. इंक्लाइन प्लेन आपका एक स्लोप होता है, यानी फ्लैट सरफेस होता है. एक इसका मतलब एक एंड हायर होता है दूसरे से. आपका जैसे रोड, आपकी एक रोड जा रही है हिल में, इस तरह से होता है. इसको यूज़ किया जाता है कोई भी जो हैवी ड्रम्स है उसको रोल करने के लिए अप और डाउन, राइट. जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे लेबरर्स है वो ऐसे वुड प्लैंक का यूज़ करते हैं. ये वुड प्लैंक है ना, इसका यूज़ करते हैं जिससे कि वो लोड कर सके सामान को ट्रक से ऊपर और नीचे. और घर के बाहर भी होता है, कई बार आपने देखा होगा ना, दैट इज़ द इंक्लाइन प्लेन. ये सीमेंटेड स्लोप होता है जिससे कि हम अपनी मोटरसाइकिल को लेके जाते हैं, राइट. It is easier to walk upon an inclined plane than to climb a number of steps to the same height. In hospitals with many stories, trolleys carrying patients are pushed up along an inclined plane called ramp. अच्छा देखिए, inclined plane पे ना वॉक करना आसान होता है. Then to climb, अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स क्लाइम करें, बेशक वो सेम हाइट की हो. हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ट्रोलीज जो पेशेंट्स को कैरी करते हैं उसको पुश करते हैं एक इंक्लाइन प्लेन में, जिसे कहा जाता है रैंप. Wedge. Wedge has 2 inclined planes joined back to back with a sharp edge. When the woodcutter puts the cutting edge on the log and hits hard with a hammer, the edge of the wedge gradually splits the log into 2. The tip of the wedge moves a little, but the split is large. That is how wedge makes work easier. It is probably the oldest machine used by human beings. अच्छा, वेज के ना 2 इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं जो बैक टू बैक जॉइन होते हैं एक शार्प एज के साथ. तो जैसे देखिए, वुड कटर क्या करता है, जब उसको लॉग को काटना होता है तो कटिंग एज को रखता है ना, एंड देन हिट करता है हैमर के साथ. तो जो एज होता है वेज का वो ग्रेजुअली क्या करता है, लॉग को स्प्लिट कर देता है 2 में. जो टिप होती है वेज की वो मूव करती है लिटिल, बट स्प्लिट जो होता है वो बड़ा हो जाता है. तो इस तरह से जो वेज है वर्क को क्या करता है, हमारा ईजी करता है. एंड ये प्रॉबेबली सबसे पुरानी मशीन है जो ह्यूमन बींग्स ने यूज की है. An axe and a knife are also wedges. We use them to cut things. A plow has a long and sharp wedge. Okay, अगर axe या knife की बात करें तो ये भी आपकी wedges हैं. Okay, and plow की बात करें तो उसमें आपका long और sharp wedge होता है. Screw. An inclined plane wrapped around a cylinder is called a screw. देखिए, एक inclined plane होता है जो wrapped होता है around a cylinder, that is called a screw. Experiment. Cut a right angle triangle out of thick paper. Wrap this paper around a cylindrical pencil. Now it looks like a screw. Trace the edge of the paper from bottom to top. Can you trace the screw thread from bottom to top? The screw thread is an edge of inclined plane. देखिए, आपने ना एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो है, यू नो द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन है ना, तो ये आपको कट करना है थिक पेपर से. फिर इस पेपर को आपने क्या करना है, रैप करना है. आपकी पेंसिल होती है जैसे कि दिस पेन सिलेंड्रिकल शेप में होती है, उसमें रैप करना है. अब आपका ना ये स्क्रू की तरह दिखेगा. अब आप एज को ट्रेस करेंगे पेपर के बॉटम से टॉप तक, तो आप देखेंगे जो स्क्रू थ्रेड है आपका, वो आपका क्या है, इंक्लाइन प्लेन का एज है. Nut and bolts also have screw-like threads on them. Turn the nut on the bolt. The nut will climb or go down. Hold the nut and turn the bolt. It moves into the nut. Nut and bolts भी आपने देखे होंगे, इनमें भी आपके screw-like threads होते हैं. अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने टर्न किया नट को बोल्ट पे, तो नट है या तो वो आपका क्लाइंब करेगा या फिर गो डाउन. ओके, तो फिर आप नट को होल्ड करेंगे, बोल्ट को टर्न करते हैं, तो फिर वो आपके नट में मूव करते हैं. Screw or bolts are used to join and hold 2 pieces of wood or metal. The cap or lid of a jam bottle has screw-like threads which help the cap to turn.
Revolving stool and pen caps also have screw threads in them. A screw is more effective than a nail to hold two things together because its sharp threads plane penetrate into the sides also. अच्छा, आपके जो स्क्रूज या बोल्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है जॉइन करने के लिए, या जो दो पीसेज हैं वुड या मेटल के उनको होल्ड करने के लिए. जैसे आपका जाम बॉटल का कैप या लेड है, उसमें भी आपके स्क्रू लाइक थ्रेड्स होते हैं जो कि कैप को टर्न करने में हेल्प करते हैं. इसी तरह से रिवॉल्विंग स्टूल है या पेन कैप्स है, वो उसमें भी आपका क्या है, स्क्रू थ्रेड्स होते हैं. स्क्रू आपका नेल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब दो चीज़ों को साथ में होल्ड करके रखना होता है, क्योंकि इसके शार्प एजेस होते हैं जो कि साइड में पेनिट्रेट हो जाते हैं. स्क्रू जैक. Some jacks are in the form of screw. They are used to lift vehicles for changing tires or repairing. When the handle is turned once, the screw tip moves up just a little. अच्छा, कुछ जैक्स होते हैं ना आपके स्क्रू की फॉर्म में होते हैं. ये व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, आपके टायर्स को चेंज करने के लिए या फिर रिपेयरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो जब हैंडल को टर्न किया जाता है एक बार, तो स्क्रू जो टिप होता है वो उसको मूव करता है, बट थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल. Here the work is spread over a large distance. Movement of the handle, that is screw check, divides the work into small bits. Thus it helps the driver to lift a very heavy vehicle and change the burst tire. तो यहाँ पे जो वर्क है ना वो एक लार्ज डिस्टेंस में आपका स्प्रेड हो जाता है. ओके, यानी कि जो आपका मूवमेंट है हैंडल का, यानी जो स्क्रू जैक है वो डिवाइड कर देता है वर्क को छोटे छोटे बिट्स में. तो इससे जो है ड्राइवर जो है बहुत हैवी व्हीकल को लिफ्ट कर पाता है, एंड देन जो बर्स्ट टायर होता है उसे वो चेंज कर देता है. फॉरगेट मी नॉट. मशीन इज अ टूल और डिवाइस विच मेक्स वर्क ईजियर. इट ईदर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट और इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ वर्क. Wheel and axle and pulley resemble the lever, while wedge and screw resemble the inclined plane. There are three types of lever. Inclined plane is used to roll drums or pull heavy loads to heights. Wheel and axle and combination work as a machine. They are used to lift and carry heavy loads. Fixed and movable pulleys are used to lift heavy loads. A wedge is used to split and cut things. A screw is an inclined plane wrapped around the cylinder. It is used to hold things together, to cap bottles and pens and lift the heavy vehicles. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.